مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں خداون یسوع المسیح کا نہایت شکر گزار ہوں، اور ان کے بعد ریما ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے آج خدا کے کلام کو بانٹنے کے لیے دعوت دی۔ میں نہایت شکر گزاری کرتا ہوں اپنے خداون کا۔ خدا کے خادم جون نوکس کہتے ہیں کہ میں شیطان سے نہیں ڈرتا، لیکن جب کبھی بھی میں پلپٹ کی اور بڑھ رہا ہوتا ہوں، میں کانپ رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خدا کے کلام کو شیئر کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور خدا کے عظیم خادم ایونجلسٹ رین ہارٹ بونکی کہتے ہیں کہ جب میں پلپٹ پر کھڑا ہوتا ہوں اور مائک میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں دنیا کا سب سے دلیر شخص ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خدا کے کلام کو بانٹنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر فیل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اس کے لیے کلیسیا عموماً جاتی ہے، کرواتی ہے دعا، اور دعا کو ہماری زندگی میں ایک بنیادی اہمیت ہے جو کہ ہر ایک ایماندار کو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو کہ دعا ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارا خداوند ہمیں جواب دے یا نہ دے، پھر بھی وہ ہمارا خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند میں جب ہم محنت کرتے ہیں تو وہ محنت رائگاں نہیں جاتی۔ بڑی خوبصورت ایک بات ہے، آج فیملیز میں بہت کم ہم دعا کو دیکھتے ہیں، فیملی پریئرز نہیں ہوتی، لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر اکٹھے دعا کی جاتی ہے، اکٹھے جمع ہوا کرتے ہیں لوگ، وہاں پر کبھی بھی فیملیز ٹوٹتی نہیں ہیں، وہاں پر کبھی بھی دراڑیں نہیں آتی، وہ فیملیز جو ہیں کبھی ان میں پھوٹ نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ دعا ایک اعزاز ہے جو کہ خداوند نے ہر ایک ایماندار کو بخشا ہے۔ مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ دعا کوئی کارکردگی نہیں بلکہ خدا کے دل میں آنا ہے۔ میرے عزیزو، بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ جنگجو ہار جائیں گے، سورما ہار جائیں گے، بلوان ہار جائیں گے، اور پہلوان بھی ہار جائیں گے، مگر میرے عزیزو، گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کرنے والے کبھی بھی نہیں ہاریں گے۔ ہاللیلویا۔ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ خدا ہمیں دعا کرنے کے لیے آج کلام دے رہا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، ایک شخص جم نام خدا کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، وہ بہت دعا گو تھا، لیکن بہت غریب شخص تھا۔ وہ جہاں پر لیبر کرتا تھا، جہاں پر وہ مزدوری کرتا تھا، اس جگہ سے ایک سڑک کراس کر کے ایک گرجا گھر آتا تھا۔ وہ روز اپنے لنچ کے ٹائم وہ وہاں سے دعا کرتا، پھر کھانا کھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 مہینے، 5 مہینے، 1 سال وہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ دعا میں مشغول رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن وہ لیبر سے فری ہو کر لنچ کے ٹائم دعا کرنے کے لیے جب چرچ جانے لگا تو ایک دم سے گاڑی آئی تو اس میں ٹکرائی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اتنا میجر ایکسیڈنٹ اس کا ہوا، آس پاس کے لوگوں نے دیکھا یہ تو بہت دعا کرنے والا شخص تھا، اس کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آزمائش اس پر کیوں آئی؟ میرے عزیزو، اس ایکسیڈنٹ کے سبب سے اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ لوگوں کو موقع مل گیا، ابلیس کو موقع مل گیا کہ اس کے خلاف باتیں کریں، اس کو بے دل کریں، لیکن میرے عزیزو، اگلے دن جب جم کو ہوش آتی ہے ہاسپٹل میں تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ کب ہوا، کیسے ہوا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کل اتنے بجے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور تمہاری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اب کچھ ماں تم چل پھر نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے۔ اب اس شخص کو کام کی فکر نہیں تھی، لیبر کی فکر نہیں تھی، اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ اسے فکر تھی کہ میں لنچ کے ٹائم خدا سے دعا کرنے کے لیے گھٹنے ٹیکتا تھا، اب کیسے جاؤں گا؟ یہ تسلسل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
सो मेरे अजीजों, जैसे ही 10 बजते हैं तसलसल और ज्यादा, 11 बजते हैं तसलसल और ज्यादा, और जैसे ही मेरे अजीजों वो वक्त जब वो घुटने टेकता था वो वक्त आ पहुंचा, उसको पसीना आना शुरू हो गया। एकदम से एक सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग उस वार्ड में आकर उस पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ए जिम, क्या हाल है तेरा? वो हैरान हो जाता है कि मैं तो इन्हें जानता नहीं, आप कौन हैं? तो बोला, मैं तेरा यीशु हूं, तू रोज मुझसे मिलने आता था लेकिन तू आज नहीं आया, इसलिए जिम आज मैं तुझसे मिलने आया हूं। तो मेरे अजीजों, खुदा हमसे प्यार करता है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। मेरे अजीजों, बिली ग्राहम से किसी ने पूछा कि आपने इस मिनिस्ट्री में इतनी कामयाब खिदमत की है, तो इसमें पावरफुल क्या ऐसी चीज है कि जो आप इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री कर रहे हैं? सो उन्होंने उस शख्स से कहा कि लिख, अपनी डायरी निकाल, लिख, ये 3 चीजें हैं जिसके सबब से मैंने इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री की। उन्होंने कहा, लिख, नंबर 1 दुआ, नंबर 2 दुआ, और नंबर 3 दुआ। ये 3 जो पॉइंट हैं वो दुआ के ही हैं, और इस दुआ के बगैर मैं इतनी कामयाब मिनिस्ट्री कर ही नहीं सकता था। तो मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगियों से नेगेटिव पीपल जा रहे होते हैं। हां, जो हमारे पीठ पीछे हमें जो है वो नुकसान पहुंचाने के दर पे होते हैं, मुंह पे बहुत मीठे होते हैं, खुदा इन लोगों को आपकी जिंदगियों से आउट कर देता है जब दुआ आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। सो मेरे चीजों, आज इब्लीस जो है वो ईमानदार की जिंदगी से दुआ को खत्म करता चला जा रहा है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के साथ बाहमी गुफ्तगू करते हैं, खुदा के साथ हम अपने दिल को खोल कर रख देते हैं, हम अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ी के साथ रख देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दुआ है ये एक जंग है, ये एक जंग है। इसके बगैर आप खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, खुदा से बात कर नहीं सकते, क्योंकि दुआ एक ऐसा हथियार है जिसके वसीला से आप शैतान पर गलबा पा सकते हैं। एक औरत एक खादिम को कॉल करके कहती है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि खुदा उसके नसीब अच्छे करे। मुझे डर लगता है, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। एक मां की यह फरियाद थी खुदा के खादिम के आगे, तो खुदा के खादिम ने एकदम से उसे जवाब दिया कि हमारी दुआएं हमारी बेटियों के नसीब बदल देंगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, दुआ जो है वो हम एक ईमानदार होने की हैसियत से करने की बेहद जरूरत है। आज दुआ खत्म होती चली जा रही है। जब हमारा दुआ का दिल करता है, जब हम दुआ करने लग पड़ते हैं तो इब्लीस कुछ ना कुछ बहाने बीच में ले आता है, लेकिन हमें इन तमाम चीजों पर गलबा पाने की बेहद जरूरत है। मेरे अजीजों, दानिएल की अगर हम मिसाल देखें तो वो एक मर्द दुआ था। अगर सदरक मेशक अब्दुन्नजू को देखें तो वो भी दुआ गो शख्स थे। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह के आगे घुटने नहीं टेके, उन्होंने मौत तो गवारा कर ली, लेकिन खुदा के साथ कनेक्शन को खत्म नहीं किया। तो हम देखते हैं कि जब सदरक मेशक अब्दुन्नजू को जलती हुई आग की भट्टी में डाल रहे थे तो उस वक्त भी वो यही कह रहे थे कि हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें आग की भट्टियों से निकालने की कुदरत रखता है। तो हम सब जानते हैं कि जब उन तीनों को आग में डाल दिया गया तो मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर खुद हैरान हो गया कि मैंने 3 लोगों को आतिशे आग में, उस आग में फेंका है, ये चौथा जिसकी शक्ल इलाह ज़ादा की सी है, वो खुद हैरान हो जाता है। सो मेरे अजीजों, खुदा आपको आग की भट्टियों से भी निकालने की कुदरत रखता है, बशर्त ये कि दुआ आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। हर हालात में, आप खुश हैं आप ना खुश हैं, हर हालात में आपको दुआ करने की बेहद जरूरत है। ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी दुआ में लेकर आएं, क्योंकि मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से सीखते हैं। आज वो जो माँ बाप को करते देखेंगे वो वही करेंगे।
अगर आज माँ बाप अगर नशा करने वाले होंगे तो आपका बच्चा भी नशा करेगा। अगर बाप अपने बेटे के सामने सिगरेट पिएगा तो बड़ा होकर वो बच्चा भी अपने बाप के सामने दलेरी के साथ पिएगा और कहेगा कि वो आप पीते थे तो मैं पी रहा हूं, तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन अगर आज आप अपने बच्चों को, आप अपने बेटे और बेटियों को दुआ के लिए उन्हें दावत देंगे, दुआ के लिए उन्हें बुलाएंगे, तो मेरे अजीजों एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चे आपको दुआ के लिए खुद बुलाना शुरू हो जाएंगे और वो कहेंगे आए हम दुआ करें, हम इकट्ठे प्रेयर करें। सो खुदा का रूह जो है वो हमारे लिए आहें भर भर कर दुआएं और शिफायत करता है। खुदा का रूह आपको खुदा की ओर लेकर जाना चाहता है। मुकद्दस इंजील पाक में अगर हम रोमियो के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत देखें, उसका 8वां बाब और 26वें आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। सो मेरे अजीजों, आज जब हम दुआ करते हैं तो सिर्फ हम अपने जिस्म के लिए मांगते हैं। ये फानी जिस्म आज है और कल नहीं, ये पानी का एक बुलबुला है, एकदम से नजर आया और एकदम से गायब। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपनी रूह के लिए, अपने खुदा के लिए, हाँ खुदा के लिए अपने आप को तैयार करने की बेहद जरूरत है। आज क्यों हमारे ऊपर बीमारियां हैं, आज क्यों कर्सिस हैं, क्यों लानतें हैं, क्यों कर्जे हैं हमारे ऊपर? क्योंकि हम खुदा से मांगने की बजाय इंसान से मांगना शुरू कर देते हैं। हम टोटली जो है वो इंसान पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पर डिपेंडेंट होना चाहिए कि खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है। खुदा ने हमें दुआ करना सिखाई है, हम कैसे दुआ कर रहे हैं। आज तो बहुत सी जिंदगियां ऐसी भी हम देखते हैं मेरे अजीजों, जिन्हें दुआ करना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं, उन्हें सिखाई नहीं गई। आज आपके पास वक्त है मेरे अजीजों, आप खुद भी दुआ करें, आप अपने घराने को भी दुआ में लेकर आए। मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं। जब मैं दुआ में नहीं था, जब मैं कलाम को नहीं जानता था, मैं अंधा था, मुझे कुछ नहीं कलाम के बारे में, जीसस के बारे में कुछ नहीं पता था। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरा बेटा पोजेस हो चुका था, इब्लीस ने उसे पकड़ लिया। मेरी बीवी रोती थी, मेरी वालिदा वो रोती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब खुदा के कलाम ने मेरे दिल में उतरना था, तो फिर जब मैं किसी और से दुआ करने के लिए गया तो फिर खुदा के रूह ने कहा कि ये तू खुद भी कर सकता है। तो मेरे अजीजों, उसी रात मैंने घुटनों के बल दुआ की, रो रो कर दुआ की, अपने बेटे के लिए दुआ की। तो खुदा ने मेरे उस रोने को देखा, तो खुदा ने मेरी दुआ को सुना। आज मेरा बेटा आजाद है और वो ढोलक नवाज है। मैंने उसे ढोलक के लिए तैयार किया है। हम घर में फैमिली प्रेयर्स करते हैं, जैसे ही 7 बजते हैं इवनिंग में हम इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मैं घर में ना भी हूं, मेरे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। यह है कि जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमें सिखाने की जरूरत है। हमें दुआ में अपने बच्चों को और अपने आप को इनकरेज करने की जरूरत है। आज हम अपने आप को ही इनकरेज नहीं कर रहे, इनकरेज करने की जरूरत है मेरे अजीजों। आज आपके पास वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह आपको आज आवाज दे रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आ और मेरी हजूरी में बैठ, दुआ कर, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए दूंगा। खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपको नशों से आजाद करना चाहता है। आज मेरी आवाज ईमान कामिल है, जिन जिन तक पहुंच रही है, जिन्होंने आज ईमान के साथ आमीन कहकर इस कलाम को रिसीव किया है, तो मेरा ईमान है यह कलाम आपके लिए है। खुदावंद आप सबको आज के इस मुकद्दस और बाबरकत कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।